अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सब्द एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 15 ता 30 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़ी व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इलत्तैरि फ़ौक़हुम स्वाफ़्फ़ातिन व यक़बिदन मा युम्सिकुहुन्ना इल्लर रहमानु इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिकीन। कुल इन
إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يهتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کوئی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کامتی رہے، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹ دے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ کتنا کم حق مانتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر: اپنی مخلوق کے احوال کو جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی قبروں سے جدا کے لیے، جیسا قارون کو دسایا تاکہ تم اس کے اسفل میں پہنچو، جیسا لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا، یعنی عذاب دیکھ کر، یعنی پہلی امتوں نے جب میں نے انہیں ہلاک کیا
हवा में उड़ते वक़्त पर फैलाने और समेटने की हालत में गिरने से, यानी बावजूद ये कि परिंदे बोझल मोटे जिस्म होते हैं और शय शकील तबन पस्ती की तरफ माइल होती है, वो फिजा में नहीं रुक सकती। अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो ठहरे रहते हैं। ऐसे ही आसमानों को जब तक वो चाहे रुके हुए हैं और वो ना रोके तो गिर पड़ें। अगर वो तुम्हें अजाब करना चाहे, यानी काफिर शैतान के उस फरेब में है कि उन पर अजाब नाजिल ना होगा, यानी उसके सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं, कि हक से करीब नहीं होते, कि हक से करीब नहीं होते। उसके बाद अल्लाह ताला ने काफिर व मोमिन के लिए एक मिसल बयान फरमाई। ना आगे देखे, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, रास्ते को देखता जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली है। मकसूद उस मिसल का ये है कि काफिर गुमराही के मैदान में इस तरह हैरान व सरगर्दान जाता है कि ना उसे मंजिल मालूम, ना राह पहचाने, और मोमिन आंखें खोले राय हक देखता पहचानता चलता है। ऐ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन से कि जिस खुदा की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मुशरिकीन से कि जिस खुदा की तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूँ, वो जो आलात इल्म है, लेकिन तुमने उन कुव्वा से फ़ायदा ना उठाया। जो सुना वो ना माना, जो देखा उससे इबरत हासिल ना की, जो समझा उसमें गौर ना किया कि अल्लाह ताला के अता फरमाए हुए कुव्वा और आलात इदराक से वो काम नहीं लेते जिसके लिए वो अता हुए। यही सबब है कि शिरक व कुफर में मुब्तला होते हो। रोज़े क़यामत हिसाब व जज़ा के लिए मुसलमानों से तमस्खुर व इस्तिज़ा के तौर पर अज़ाब या क़यामत का, यानी अज़ाब व क़यामत के आने का तुम्हें डर सुनाता हूँ। इतने ही का मामूर हूँ, इसी से मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाता है। वक्त का बताना मेरे ज़िम्मा नहीं, यानी अज़ाब मऊद को चेहरे स्याह पड़ जाएंगे, वहशत व गम से सूरतें ख़राब हो जाएंगी। जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे और अम्बिया अलैहिस्सलाम से कहते थे कि वो अजाब कहाँ है, जल्दी लाओ, अब देख लो, ये है वो अजाब जिसकी तुम्हें तलब थी। ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार मक्का से जो आपकी मौत की आरजू रखते हैं, यानी मेरे असहाब को और हमारी उम्र दराज कर दे, तुम्हें तो अपने कुफर के सबब ज़रूर अजाब में मुब्तला होना है। हमारी मौत तुम्हें क्या फ़ायदा देगी जिसकी तरफ हम तुम्हें दावत देते हैं, यानी वक्त अजाब और इतनी गहराई में पहुंच जाए कि डोल वगैरह से हाथ ना आ सके, कि उस तक हर एक का हाथ पहुंच सके। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की कुदरत में है। तो जो किसी चीज़ पर कुदरत न रखे, उन्हीं क्यों इबादत में उस कादर बरहक का शरीक करते हो। मुझे नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और इसके शान नज़ुल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस की सफ़ी के हज़ूर पाक वसल्लम की ज़ात व बरकात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हुज़ूर पाक वसल्लम की पाक सुन्नत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम नाज़रीन से ये इस्तज़ा रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, इसको लाइक शेयर करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें यूट्यूब के चैनल को, और अल्लाह ताला ताकि मुझे और आपको दिन क़यामत इस प्रोग्राम के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।